हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ वो आपका MHI 02 का यूनिट 1 चैप्टर है, रेनांसेस एंड द आइडिया ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। आपके सारे नोट्स इस चैप्टर से रिलेटेड जो हैं कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रिंट। The new art of printing played a significant role, which produced many classical texts in Italy, mostly in Latin, by 1500. It also helped in bringing down the cost of books and providing the students a new kind of learning in addition to lecture. New ideas, opinion, and information moved more widely and more rapidly than ever before through printing. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेकुलर ओपनिंग। Renaissance created condition for the emergence of a secular ideology and focused on humanism. Petrarch never doubted the truth of Christianity. Similarly, Salute did support the active secular life for most people and followed that course in his own life, but he still respected the monastic ideal. Humanism as a culture of the talented urban people in the wealthy Italian town was giving rise to a secular morality. Metlo Palmeri expressed values as secular and regarded marriage, wealth, and politics as natural. It may be noted that the glorification of secular life was more a literary reflection of changing social attitude than an aspect of classical study. Secular morality of the humanist was based on a belief in man's intellectual and moral capacity, a new sense of history, and a highly sophisticated mode of learning. The work by the famous goldsmith and sculptor Benvenuto Cellini was a secular and realistic work which told the story of his life. He persuaded the reader to see the world around him through his eyes, not according to all sorts of idealization which the church had earlier imposed on Christian communities. उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है रियलिज्म वर्सेस मॉरलिज्म. Niccolo Machiavelli was secular and realist. His The Prince described the role of man in politics. Here he showed that the will to power was a dominant motive in human action, though often quoted with nice words of religious and ethical nature. While the striving for power was perfectly acceptable to Machiavelli, to some others, such as Thomas More, it was a source of much mischief. It may be noted that the city state was one sphere in which it became increasingly evident that man is the maker of his own world together with others instead of being determined by either Christian or feudal rules of conduct. Ficoni stressed the fact that God created man, but also that once created, man created himself over and over again. The 14th century life, like frescoes of Guiter de Bodon, had brought about significant changes in the artistic visualization of human figure. A more well-known work on the same subject was created in 1503 by Michelangelo. Mona Lisa by Leonardo da Vinci has remained as one of the symbols of female beauty in modern time. Like humanism, the Renaissance is also realistic. Earlier realism was not totally absent but had been relatively unimportant. In the first phases of humanist culture, painters increasingly attempted to reproduce reality, casting off preconceived ideas about what was morally or religiously acceptable, whereas the art of the preceding centuries had been a component of an architectural background. Humanism and the Renaissance were elite phenomena for both south and north of the Alps. The educational institution in northern Europe produced many humanists in the 15th and early 16th century. The popularity of humanist values in early 16th century Europe can be attributed to John Colet and Sir Thomas More in England. Jacques Livard Etaples and Guillaume Bude in France,
Konrad Celtis and Juan Reuchlin in Germany, and Erasmus in Holland. However, in European humanism, the leading protagonists were mostly members of the clerical order, as opposed to Italy, where professional dominated the humanist movement and gave it a secular character. तो यहाँ पे चैप्टर के नोट्स आप लोग के कंप्लीट होते हैं और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको MHI 05 का जो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर कोई स्टूडेंट हो जिनको हिंदी मीडियम में नोट्स चाहिए तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हिंदी मीडियम में भी वीडियोस बना के डालूँगी और अगर आपको चाहिए तो हिंदी मीडियम के नोट्स भी आपको मेरे पास से अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरी बात, स्टूडेंट्स जिनको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, सॉल्व असाइनमेंट्स चाहिए या प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको उस पर सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस भी चलाती हूँ और अभी मेरी प्रेजेंट में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी क्लासेस चल भी रही हैं। कोई बच्चा अगर एनरोल करना चाहे तो वो कर सकता है। और मैं सेकेंड ईयर हिस्ट्री की क्लासेस भी अब शुरू करूँगी, अगले महीने से ऑलमोस्ट मेरी शुरू ही हो जाएंगी। तो जिन बच्चों को सेकेंड ईयर हिस्ट्री में भी एनरोल करना है वो कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर ऑफ एजुकेशन के हैं इग्नू से तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उन सभी के नोट्स, सॉल्व असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन और ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको नोट्स मिल जाएंगे, दूसरी बात आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, फिर आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे, उसी में आपके असाइनमेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा आपको जो है रिवीजन नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, बहुत सारे मटेरियल आप लोगों को अवेलेबल होगा, ठीक है। और ये मत सोचिएगा बहुत कॉस्टली है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। मैंने मतलब बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये कोर्स रखा है। पूरा 1 ईयर का कोर्स होता है क्योंकि आप लोगों का भी जो कोर्स है वो 1 ईयर का होता है, तो ये 1 साल का कोर्स होता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग एक बार ज्वाइन करके देखिए, आप लोगों को खुद पता चलेगा कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन इट। अगर आप सेपरेट से ख़रीदने जाओगे, मार्केट में भी ख़रीदने जाओगे तो वो चीज़ें शायद आप एक एक चीज़ को लोगे, असाइनमेंट्स अलग लोगे, बुक्स अलग लोगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर अलग लोगे, तो आप सोचो आप लोगों को कॉस्टली पड़ेगा। बट हियर आप मेरे क्लासेस में आप देख सकते हो 1 साल में आपको हर एक चीज़ अवेलेबल है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल होंगी आपके लिए। मतलब मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ और आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम में भी क्लासेस अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप बीच में से ज्वाइन करेंगे तो मैं आप लोगों को एनरोल नहीं करूँगी। जो बच्चा जब एनरोल करना चाहे वो कर सकता है। तो हाँ, लेकिन ये नहीं कि 1 महीने पहले, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, क्योंकि उस टाइम पे सिलेबस ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप टाइम से पहले कर लेंगे तो आप ही लोगों के लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक बाय।